Hi dear friends, it's very good evening to everybody, and it is 8th of January 2021, and it is Friday today. Right now it is 46 minutes past 8, and I'm your dear friend Mukhtar Singh Karnawal, village Sankhla, MIA, Alwar, Rajasthan. And right now you are watching Mukhtar Singh Karnawal, Alwar, Rajasthan, YouTube and Facebook channel. Dear friends, if you like this video, please do subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification time to time, and like the video and write your thoughts in the comment box and share the video as much as you can. My dear friends, I hope you must be fine and your life must be getting along fine day by day, and your family also should be fine. Dear friends, it's long since I had a chat with you, though I talked to you yesterday. But you know that nowadays I have got a bit busy, so I am not being able to talk to you daily. So sorry for that. Reason being, you know, there are some other works to do. That's why sometimes I get busy and I do not come on live the way I used to come and I used to talk to you. So let's talk. You know that it's getting cold day by day, and today it rained. Somewhere it rained a lot, and here in my village it didn't rain too much, but you know it sprayed, and that's why the weather is very windy, so it's too cold to go out. Let it be. But oh, I'm sorry because I'm speaking in English. Let me speak in Hindi. I request you, my dear friends, let me speak in Hindi because there are so many friends and usually they are not able to understand English and they love to listen to me in Hindi. If I keep speaking in Hindi, English, then obviously they would be objecting that sir always speaks in Hindi, English, and he doesn't speak in Hindi. So I'd be talking to you and I'll be discussing everything. But first of all, I would like to, respect my dear friends who are online and watching me. So let me talk to them first of all. Mr. Chinder Singh is there. Sorry, my dear friends, I'm keeping it up in English. Later on, I'll be speaking in Hindi. First of all, Chinder Singh. Chinder Singh is from village Sankhla, MIA, Alwar, Rajasthan. He is one of my best friends. I wave you, my dear friend. Next, Gurpreet Singh. Hi, Gurpreet Singh. Hi, hello. How are you? Talking to you after a long time, and earlier you were also connected with me, but nowadays I wonder where are you? So after a long time having a discussion with you, my dear friend, and you are my one of best nephews, and you are from Nuhu. You are from Nuhu, Haryana, Mewat. I wave you, my dear nephew Gurpreet Singh. Next, Bhudev Chaudhary. Hi, oh wow, fantastic. Bhudev Chaudhary, how are you, my dear friend Bhudev Chaudhary? I hope you must be okay. And you know, it's long since we had a chat and we had a good meeting with each other. I wave you, my dear friend Bhudev Chaudhary. You are from Dumeda village.
Next, Sachdev Singh is been connected with us. He is one of my best friends and he is from village Sankhla MIA, Alwar, Rajasthan. I wave you, my dear friend, Sachdev Singh. And next, S.K. Sharma is watching. Hi, my dear friend S.K. Sharma, you are from Meenapura and you have got very good shop, sweet shop at Bahala stand. And usually you are connected with me. And the way you like the video and the way you like our post, it's incredible. Thank you so much. Keep it up. And I wave you, my dear friend S.K. Sharma. Next, Sunil Baveza. I wonder. Sunil Baveza is with us. Hi, dear friend Sunil Baveza. You are a relative of Comrade Raghunath Baveza from Alwar. And so great of you that you are with us. And I wave you, my dear friend. Next, Virender Singh. Hi, Virender Singh ji. How are you? I hope you must be fine and your life must be getting along fine day by day. He is from the gentleman, Mr. Virender Singh is from village Allahpur, Rajasthan. And he is one of my best friends. I wave you, my dear friends. Friends, these are the things I wanted to discuss, and usually general conversation, day-to-day life conversation, nothing is special. But all of a sudden I started in English because always or oftenly I start in English, like date and what do you say, day and time. But now it's very difficult sometimes that if you are speaking in English, then hardly you can switch from English to Hindi, and if you are speaking in Hindi, it's very difficult to switch from Hindi to English. But people say, you know that I've been taught with my great gurus, and I do respect my gurus. That still I remember the way they have taught me, and they have taught me how to speak. Doesn't matter English, Punjabi, Hindi, Urdu, but at least they have told me that how to speak in public. So I touch always their feet, and I hope that my gurus, my preceptors, my mentors, blessings always should be over my head, and they are always in my heart. So be it. Now let's talk about the political news. Nothing is special today. Again, it was negotiations was there between farmers, the leaders of the farmers and the government. So it was eighth round conversation, but nothing was solved. No solution was sorted out, and the meeting was postponed. And next meeting is on 15th of January 2021. So the meeting has been postponed. See what happens. And you must have known and must have heard in the news that in what happens in America, the supporters of Trump, they attacked the White House. Four people yesterday or day before yesterday, they died, they were shot. And today one policeman was also, he was injured and he died. So dear friends, and in UP there was one more incident about the rape that was also in the limelight. So nothing is special. Gyan Sahni, comrade, red salute, comrade. So my dear friends, now please let me speak in Hindi because so many people are there, so many my friends are there. If I keep speaking in English, obviously they would be annoyed, they would be crossed with me. So now I must speak in Hindi. So let me speak in Hindi. मैं हिंदी में बोलने की इजाज़त चाहूँगा कि अगर मैं से इंग्लिश में बोलता रहा तो बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे और कहेंगे एक तो सिर के ऊपर से जा रहा है, पता नहीं क्या फेंक रहा है, हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों अब आपसे मैं हिंदी में बोलने की इजाज़त चाहूँगा। होता दरअसल यह है कि जैसे हम इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इंग्लिश से हिंदी में आना।
और यदि हम हिंदी में स्टार्ट करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है हिंदी से इंग्लिश में आना। तो स्विच ऑफ करना, स्विच करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, अब हिंदी पर आ ही गए हैं तो आप सभी का स्वागत है मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान, फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 8 जनवरी सन 2021 है और आज शुक्रवार है और इस वक्त शाम के 8:56 हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो अच्छी लगेगी आपको, और उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने थॉट्स, आपके विचार जो भी हों, जो भी सजेशंस हैं, व्हाट्सएवर यू गॉट, उस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, नथिंग इज स्पेशल, ऐसा कोई ख़ास नहीं। ऐसे ही मैं तो थोड़ा सा बिजी रहता हूँ और आज भी सोच रहा था रहने दूँ, टाल रहा था, और लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अब दोस्तों के बीच आते रहते हैं तो एकदम छोड़ देना और दूर हो जाना दोस्तों से, ये भी ठीक नहीं है। तो चाहे मैं 10 मिनट बात करूं, चाहे मैं 5 मिनट बात करूं, मैं अपने दोस्तों से बातें ज़रूर करूंगा डेफिनेटली। और मैंने हिम्मत जुटाई कि नहीं, मैं बातें करूंगा, क्योंकि हर कोई बातें नहीं कर सकता और खुदा ने ये कला दी है बातें करने की, तो मैं इसका सदुपयोग क्यों ना करूं। और मुझे करना चाहिए। बहुत सारे मेरे दोस्तों के फ़ोन भी आते हैं, जो पहचानने वाले हैं, वो कहते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, कीप इट अप। तो मैंने सोचा नहीं, चाहे कम समय दिया जाए लेकिन दोस्तों से बातें ज़रूर होनी चाहिए। और हमारे कॉमरेड साथी भी जुड़े हैं, जैसा कि हम जानते हैं अन्नदाता किसान है, और किसानों आज पिछले 1.5 महीने से बेचारे किसान ऐसी हार्ड कंपाती, ऐसी तेज सर्दी में, ऊपर से बरसात, ठंडी हवाएं, बेचारे बॉर्डर पर बैठे हैं। कोई दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है, कोई हरियाणा बॉर्डर पर, शाहजहाँपुर, टीकरी, सिंधु, गाजीपुर। पागल नहीं है वो किसान जो बैठे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट हो या पहले कोई और सरकार रही हो या इंदिरा सरकार रही हो, जो भी सरकारें रही हैं, बहुमत होता है तो सरकार बनती है, बहुमत नहीं होता तो सरकार नहीं बनती। लेकिन बहुमत में आने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप अपनी मर्जी करने लग जाएंगे। सरकार को कानून बनाने का हक है, अधिकार है। अगर सरकार के पास बहुमत है दोनों सदनों में तो वो कानून बना सकती है। लेकिन जनता के पास अधिकार है कि अगर उससे लगता है कि ये कानून गलत है तो जनता उसे चुनौती दे सकती है, और यही काम कर रहे हैं किसान भाई। अब आप उसे विपक्ष कहिए, आप उसे पार्टीबाजी कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन किसान, पंजाब और हरियाणा का हर किसान बॉर्डर पर बैठा है। अब बेचारे कुछ घरों में हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। मैं भी एक किसान हूँ, मैं आज बॉर्डर पर नहीं बैठा हूँ, मैं शाहजहाँपुर बॉर्डर पर नहीं बैठा हूँ, तो क्या मैं किसानों का दर्द नहीं समझता? तो क्या मैं इन कानूनों के पक्ष में हो गया? कभी नहीं। मैं घर पर बैठा हूँ, मेरी मजबूरियाँ हैं कि मैं वहाँ जा नहीं सकता, मैं वहाँ जाकर शाहजहाँपुर बॉर्डर पर बैठ नहीं सकता, मैं सिंधु बॉर्डर पर नहीं जा सकता, मेरी मजबूरियाँ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसानों के साथ नहीं, मैं किसानों के साथ हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ। मैं खिलाफ हूँ इस गवर्नमेंट के, जो एक पूंजीपतियों की एक तरह से कठपुतली बन के रह गई है, और जो भी कानून बनाती है सिर्फ पूंजीपतियों के हक में बनाती है, या धार्मिक कट्टरता के पक्ष में कानून बनाती है। ये राइट विंग की सरकार, जो दक्षिण पंथ की सरकार है, और दक्षिण पंथ तो क्या, अब तो मैं पूंजीपतियों की सरकार कहूँगा, जो अडानी और अंबानी के इशारों पर चलती है। मैं घोर निंदा करता हूँ इस सरकार की। मैं किसान हूँ और मैं किसान के साथ हूँ, लेकिन मैं वहाँ बॉर्डर पर नहीं हूँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं रजाई में सोता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरी तरह करोड़ों किसान हैं जो अपने घरों में बैठे हैं,
जिनकी मजबूरियां हैं, जो बॉर्डर पर नहीं जा सकते। इसका मतलब यह नहीं कि वो वही किसान हैं जो वहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं, घरों में बैठे हुए भी किसान हैं और वो भी सरकार के खिलाफ हैं। जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो तो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यही है दोस्तों, आप समझदार हैं कि ये जो काले कानून हैं, लोहड़ी को, जो 13 जनवरी की लोहड़ी होती है, किसानों ने ये फैसला लिया है कि लोहड़ी वाले दिन हम इन जो काले कानून है, हम इनको जलाएंगे हम। ये किसानों ने फैसला किया है। 26 जनवरी को वो एक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे पूरे देश में, जिसकी रिहर्सल वो कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। किसानों ने आज कहा कि हम बात से मुंह नहीं फेरेंगे। आज 8 तारीख के बाद 7 दिन बाद फिर 15 तारीख को बातचीत होगी। कोई यूं ना कह दे कि टेबल पर किसान बात नहीं करना चाहते, किसान बात भी करना चाहते हैं। खैर वो, अब मैं क्या कहूँ, आई नॉट टू ए वाइज, आप खुद समझदार हैं। तो हम तो किसान हैं और किसानों के साथ हैं, अन्नदाता के साथ हैं। और मैं चाहूँगा कि खुदा इस गवर्नमेंट को सद्बुद्धि दे, वाहिगुरु इस गवर्नमेंट को अकल दे। झुकने से इंसान बड़ा हो जाता है। अगर सरकार झुक जाती है ना और इन बिलों को वापस ले ले, झुकना भी नहीं कहते इसे, तो ठीक है, आपका आदेश सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, आपने हमें जिताया, आप किसान हो, अन्नदाता हो देश के। और अगर आप आप अगर इस तरह से कह रहे हो तो हम हटा लेते हैं। हम आपके लिए ही तो हैं, हम आपके लिए काम करते हैं, तो हटा सकते हैं। ज्ञान सिंह साहनी कॉमरेड जी एमएसपी के बारे में विस्तार से जानकारी दें। कॉमरेड आप तो समझदार हैं, एमएसपी के बारे में टीवी पर मेरे प्यारे दोस्त इतनी चर्चा हो रही है कि लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन चूंकि आपने सवाल किया है तो मैं, आप जानते हैं लेकिन बहुत सारे, सभी लोग जानते हैं लेकिन फिर भी आपने सवाल किया है तो आई वुड आंसर योर क्वेश्चन। मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। एमएसपी को दोस्त समझ लें, इसकी फुल फॉर्म जो है इंग्लिश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह एक किताबी भाषा में है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या फिर मैं कहूँ न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसे इस भाषा को, इस लैंग्वेज को हर आदमी नहीं समझ पाता। मैं देहाती में कहूँ, मैं सीधी भाषा में कहूँ तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ है किसी भी फसल की कम से कम कीमत, कि इससे कम उसे नहीं खरीदा जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे कोई मजदूर है तो उसे कहा जाता है कि आप यदि मजदूर से काम लेते हैं तो 8 घंटे में इतनी जो उसकी मतलब नौकरी है कम से कम होगी, इतनी दिहाड़ी या इतनी पेमेंट महीने की कम से कम होगी। ज़्यादा तो आप कितना भी दे दें लेकिन इससे कम नहीं दे सकते। तो दोस्तों, हमारे देश में हर चीज़ की एमएसपी भी होती है। सरकार हर साल जारी करती है एमएसपी हर फसल की, कि गरीब किसान मेहनत करके फसल को उगाता है और ये एमएसपी हर साल गेहूं या सरसों या कोई बाजरा या कोई जो भी फसल होती है, कि इससे कम मंडी में किसान से वो फसल नहीं ली जाएगी। इतने दाम तो, क्योंकि वो लागत लगाता है, इतने दाम तो किसान को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मूल्य सरकार तय करती है, एमएसपी। लेकिन अब जो कानून बनाया है उस कानून में सरकार ने ये कहा है कि ये जो अडानी अंबानी हैं ये प्राइवेट मंडियां खोल सकते हैं और ये किसानों से उनकी फसल जो है ले सकते हैं। अब उसमें किसानों का ये कहना है कि जो एमएसपी सरकारी मंडियों में होती है, जो मूल्य तय होता है कम से कम, वो कम से कम मूल्य इन प्राइवेट मंडियों में भी तय कर दे, कि अडानी अंबानी अगर हमारी फसल खरीदते हैं, सरसों गेहूं चावल जो कुछ भी खरीदें, इससे कम में नहीं खरीदें।
आप इस पर एमएसपी तय कर दो। लेकिन सरकार है कि वो एमएसपी उस पर तय नहीं कर रही है, वो ये कह रही है कि वो अपनी मर्जी के रेट में खरीदेंगे। अब दोस्तों उसके पीछे बात यही है कि शुरू में तो वो महंगे रेटों में खरीदेंगे और 2-4 साल वो महंगे में खरीदेंगे, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, झटका झेल जाएंगे। एक बार महंगे में खरीदेंगे, जब महंगे में खरीदेंगे तो जो सरकारी मंडियां हैं वहाँ पर किसान जाना बंद हो जाएगा, इधर ज़्यादा दाम मिलेंगे, इधर बेचने लग जाएगा फसल। वहाँ पर जो आड़ती लोग हैं वहाँ पर भी उन्हें सही रेट नहीं मिल पाएगा, सब इधर बेचेंगे और वो मंडियाँ लगभग सरकारी मंडियाँ बंद हो जाएंगी, वो आड़तियों की दुकानें बंद हो जाएंगी और फिर यही रह जाएंगे। अब इनको आप, क्योंकि कम से कम मूल्य तो निर्धारित है नहीं, अब तो ले रहे थे 2000 रुपये प्रति क्विंटल कोई फसल महंगी ले रहे थे, बाद में वो 1000 रुपये, 800-900 रुपये लेंगे, 700 रुपये लेंगे। हम तो ज़्यादा भाव देंगे ही नहीं, तो किसान को देनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारी मंडी ख़त्म हो चुकी है, आड़तिये ख़त्म हो चुके हैं। तो किसान यही चाहते हैं कि प्राइवेट मंडियां तो चलो आप बना लो, लेकिन एमएसपी उसमें निर्धारित कर दो। लेकिन सरकार उसमें एमएसपी निर्धारित करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार इसलिए तैयार नहीं है कि अडानी और अंबानी सरकार को तैयार होने नहीं देते हैं। अब इसमें कई लोग सवाल ये उठाते हैं कि पहले कौन सा किसान एमएसपी पर सरकारी मंडियों में बेचता है अपनी फसल। पहले भी तो वो आड़तियों के पास बेचता है और आड़ती उससे सस्ते मोल पे फसल लेते हैं। वो छोटे व्यापारी हैं, वो सस्ते मोल पर लेते हैं, लेकिन वो 7% टैक्स देते हैं जो सरकारी खजाने में जाता है और उनको वही बराबर पड़ जाता है लगभग सिस्टम। क्योंकि किसान गया, आज सुबह गया, शाम को फसल बेच कर आ गया, तुरंत उसके हाथ में रुपए आ गए, उसको मेहनताना मिल गया। वो जो एमएसपी है उससे अगर वो 7% कम भाव में बेच आया तो वही उस आड़ती को 7% बाद में सरकार को देना पड़ेगा, तो वो पैसा सरकारी खाते में आता है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट मंडियों में, जो प्राइवेट मंडियाँ होगी उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई एमएसपी नहीं लगेगी, मर्जी है, सस्ती खरीदे महंगी खरीदे, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो देश को है। चाकू चले खरबूजे पर या खरबूजा चले चाकू पर, नुकसान खरबूजे को है। यहाँ अगर एमएसपी तय नहीं होती तो ये तो चाकू है, अडानी अंबानी तो चाकू है, किसान तो खरबूजा है। कटेगा तो किसान, नुकसान तो होगा किसान को। अब वो चाहे आप ज़्यादा भाव दें या कम दें, वो ज़्यादा भाव देगा तो बाद में कम करके वो अपना निकाल लेगा। ये तो बिजनेसमैन है, सब जानते हैं धंधा किस तरह से होता है। जो धंधा करता है उससे बिजनेसमैन कहते हैं। तो ये तो धंधा करने वाले लोग हैं भाई, ये निकाल लेंगे अपनी एमएसपी सब जो ज़्यादा देंगे सब उसके बाद में निकाल लेंगे। अब देख लो ना आप, कितनी कंपनियां थी, 15-16 कंपनियां थी मोबाइलों की, सब ख़त्म कर दी। बीएसएनएल भी ख़त्म कर दी। जियो, शुरू में जियो बनाई, जियो ने अपना नेट साल साल तक के लिए फ्री देना शुरू किया, 6-6 महीने तक फ्री देना शुरू किया। जेब से लगाया पैसा, जेब से लगा के नेट फ्री दिया। और वो बेचारी जो छोटी मोटी कंपनियां थी वो झटका झेल नहीं पाई, वो मोबाइल की सारी कंपनियां बंद हो गई, अपनी दुकान उन्होंने समेट ली, गरीब थे नहीं चला पाए। अब बाद में उन्होंने क्या किया, जब वो चले गए यही 3-4 कंपनियां रह गई अडानी अंबानी बड़े लोगों की। अब वही रेट बढ़ा दिए, वही नेट का पैसा बढ़ा दिया, कभी 100 रुपये, फिर 399, आज वो वहीं जाकर 499 में हो गया, तो अपना रेट बढ़ा दिया। बीएसएनएल बेचारी ख़त्म हुई पड़ी है। पहले 35 रुपये रखा था इनकमिंग कॉल, अब वो उसको कर दिया उन्होंने 49 रुपये, और भी बढ़ा रहे हैं सुनाए। तो इसी तरह से एक बहुत बड़ी साजिश है। हर किसान को पता नहीं है, लेकिन जो किसानों के नेता हैं वो शिक्षित हैं, वो समझदार हैं, जो आज बात कर रहे हैं मोदी सरकार से।
तो मेरे प्यारे दोस्त कॉमरेड, आपने पूछा था एमएसपी के बारे में विस्तार से जानकारी दें। मुझे इतना ही ज्ञान है, मैंने बता दिया। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इन बिलों में, लेकिन वो मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूँगा बिकॉज यू क्वेश्चन। तो मैंने सोचा आपके क्वेश्चन का उत्तर दूं, हो सकता है किसी के काम आ जाए। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सभी दोस्त जुड़े। आप सभी का स्वागत है। और कॉमरेड ज्ञान साहनी ने लिखा है, देश के किसानों की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद। और देखते हैं, बस इतनी ही बातें कर पाऊँगा। और कोई और साथी जुड़े तो और उनसे बातें करके, नहीं तो 5 मिनट बातें और करूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कोशिश करूँगा कि मैं 5 मिनट आपसे बातें करूँ, लेकिन समय की व्यस्तता के चलते कभी कभी बातें नहीं हो पाती। और कभी कभी सर्दी भी ऐसी होती है, मौसम भी ख़राब हो जाता है, तो सोचते हैं चल छोड़ यार। लेकिन मैं अपने गुरुओं को कभी नहीं भूलूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जिन गुरुओं ने मुझे बोलने की कला सिखाई और मैं बातें कर लेता हूँ, आपको अच्छी लगती हैं। और अच्छी लगती हैं तो प्यारे दोस्तों, अभी आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, लेकिन यही वीडियो थोड़ी देर में जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और बहुत सारी काम की वीडियो उस पर अपलोड करूँगा मैं, और ख़ुद अपनी करूँगा मैं। तो अगर आप हमें सुनना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ से फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और अपने जो भी विचार हों कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों, बातें हम यही जनरली कर रहे थे। और तारीख ध्यान दिला दूँ, आज 8 जनवरी सन 2021 शुक्रवार है, और इस वक्त शाम के 9:12 हो चुके हैं। और आप सुन रहे हैं मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला, MIA, अलवर, राजस्थान, आपके चाहते दोस्त को। और देखता हूँ कोई और सर जुड़े तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब अपना फिक्स टाइम नहीं है। देयर इज़ नो फिक्स टाइम, कभी आए कभी नहीं आए, तो फिर दोस्तों को पता नहीं रहता। पहले तो 8 बजे का फिक्स टाइम था शाम के, तो 8 बजे करीब करीब सैकड़ों दोस्त जुड़ा करते थे। लेकिन हाँ, मुझे इतना यकीन है कि अभी वो मौके पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन कल तक वो देख लेंगे इस वीडियो को। और दोस्तों, बाद में जो भी देखे उसे ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और किसी टॉपिक मुद्दे पर आप पर मुझको चाहते हो कि मैं बोलूं तो वो भी ज़रूर लिखें। और बहुत वाहेगुरु ने बहुत नॉलेज दी है, तो उसका फ़ायदा उठाएं। हम अनुभव दिया है, उसका फ़ायदा उठाएं। और दोस्तों, इसके अलावा कोई और, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। और बाकी तो आपका बहुत प्यार मिला, और सर्दी दोस्तों है ही आजकल, और बस सर्दी के चलते किसानों को ताकत बख्शे मेरा वाहेगुरु, और बाकी सब मेहरबानी है आपकी, गुरुओं की और वाहेगुरु की। तो इन्हीं बातों के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। और क्लोजिंग वर्ड्स जो मैं कहता रहता हूँ लास्ट में, यूजुअली वही कहता हूँ, कभी पैट फ्रेज नहीं बन जाए, तो वो चीज़ें कहूँगा कि आई हैड अ वंडरफुल टाइम विद यू, इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आराम से विश्राम कीजिएगा, शुभ रात्रि, और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सपने देखिएगा, सुंदर सपने देखिए, और आपके सुंदर जो सपने हैं वो साकार हों, आपके सपने सच हों। अगर युवा लोग देख रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी नौकरी लगें, और नौकरी लगकर देश की सेवा करें, और बहुत ऊंची नौकरी पर जाएं।
अच्छे इंटरव्यू की तैयारी करें। हमारे लिए कोई सेवा हो तो प्लीज़ आप आएँ, कभी भी घर पर आएँ, आपका स्वागत है। हम आपकी जो कुछ भी बन पाया विल बी हेल्पिंग यू, हम आपकी सहायता करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड चाओ चाओ।